Good Good morning, student, and welcome on the mathematics class. And today I am here to come or introduce that the revision work of the triangle and quadrilateral of class 9th. In this video, I will explain some important question that is related with your chapter triangle and quadrilateral, and these are highly important question because in this question you have to express all over the properties related with the triangles and quadrilaterals. So in this series we have to start the first question. The question is on your screen is so that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Here the question is says कि in the rhombus if the diagonal are bisected each other, then it is bisect at the right angle, that is means the perpendicular. Okay, so first of all you very well know about the property of a rhombus, because if you have to solve this question then you very well know about the property of a rhombus. Rhombus property is that all the sides of a rhombus are parallel and also the diagonals of a rhombus is bisected each other at 90. But here you have to prove these things, so you have to use a first property of a rhombus, that's mean the side of a rhombus are equal. So start with this property. We have to given here ABCD quadrilateral ABCD is a rhombus. Okay, and in rhombus you have AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, and now you have to make a figure related with the rhombus. So we have to create a figure rhombus, create a figure of a rhombus, that is your figure of a rhombus. Rhombus figure is here A, B, C and D. यहाँ पर आपके पास ये rhombus की figure है A, B, C, D, and you very well know in a rhombus all sides are equal. That means this side, this side, this side, and this side are equal. Now you have to prove that the diagonal of a rhombus, that means the diagonal of a BD and AST are bisected each other at O, and now you have to prove कि this angle, this angle, this angle and this angle is 90. ये चारों एंगल आपके पास 90 के होंगे, ये आपको इसके अंदर प्रूफ करके दिखाना है. तो देखिए गिवन हमारे पास हो चुका है. अब हम इसके बाद अपने टू प्रूफ की तरफ चलते हैं कि आपको प्रूफ करके क्या दिखाना है. एक्चुअली वी हैव व्हाट थिंग्स यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. सो यू हैव टू प्रूव दैट कि एंगल AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD and is equal to angle DOA is equal to 90. That's mean कि जितने भी यहाँ पर ये AOB है, BOC है, COD है, DOA है, ये आपके 90 के होंगे. जनरली आपको यही प्रूफ करके इसके अंदर दिखाना है. क्वेश्चन बहुत इजी है. आप सिंपली अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन को बहुत फास्ट और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. देखिए क्वेश्चन के अंदर सिंपल चीज है कि आप जो है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए. अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं DOA एंड BOA. तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इज in triangle DOA and triangle BOA. हम इन ट्रायंगल में अगर यूज करें तो यू वेरी वेल नो कि द साइड ऑफ द AD इज इक्वल टू द साइड ऑफ AB, क्योंकि रोम्बस की साइड है इक्वल होंगी, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी. तो दैट्स मीन AD इज इक्वल टू AB. ये कहां से, इस वाली
वैल्यू से। देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास गिवन। जो हमें यहाँ पर रोम्बस की साइड या रोम्बस प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस गिवन है, तो हमने वो चीज यहाँ के अंदर राइट कर दी। क्लियर? देन आफ्टर यू हैव टू राइट दिस थिंग्स जस्ट लाइक अ डी ए है ना, तो डी ए ही राइट करिए, डी ए। ओके, तो यहां पर आपके पास ये हो गया। सेकंड थिंग्स आप क्या कह सकते हैं कि देखिए जब ये रोम्बस है तो रोम्बस से पहले ये एक पैरेललोग्राम भी तो है, रोम्बस से पहले ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब पैरेललोग्राम के डायगोनल आपके पास इक्वल होंगे तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जब पैरेललोग्राम के आपके पास डायगोनल इक्वल होंगे तो यू वेरी वेल नो कि ये चीज बी वो डी ओ इज इक्वल टू होनी चाहिए बी ओ के, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे में काटते हैं, ये और ये दोनों हाफ हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये क्यों है? प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की आपके पास प्रॉपर्टी है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमने इक्वल राइट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि OA जो है, AO जो है या OA जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी इक्वल है, तो आप इसे क्या राइट कर सकते हैं, AO इज इक्वल टू AO, दैट इज योर कॉमन साइड। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड से आप क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ साइड से ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखिए ये आपके पास ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब हम ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट रख दिए हैं, यानी कि कर दिए हैं, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, तो क्या आप इसके अंदर ये चीज भी राइट कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, जिसे मैं इरेज कर रहा हूं, इनके अंदर की वैल्यू, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो हम क्या इस एंगल को इस एंगल की इक्वल राइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीपीसीटी की प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल क्या, DOA इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOA के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CPCT। क्लियर? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CPCT, एंड यू वेरी वेल नो ये दोनों एंगल आपके पास किस टाइप के एंगल को फॉर्म करते हैं, ये दोनों एंगल आपको बनाते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो यहां पर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल, हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से क्या लिख सकते हैं, एंगल DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180। और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 ये है, और इक्वेशन 2 हमने ये बना ली। यहां से आप एक चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने इन दोनों को इक्वल लिखा है, और यहां पर ये दोनों प्लस होकर के 180 आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं और दोनों का प्लस 180 है, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 से क्या हम ये राइट नहीं कर सकते कि ये इक्वल टू, ये तो हमारे पास है ही, पर इक्वल कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो बाय द प्रॉपर्टी, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 90। ओके, तो हम यही बोल सकते हैं कि DOA और BOA हमारे पास 90 के इक्वल होंगे। अब जब ये 90 के हैं तो बाकी बचे हुए एंगल ऑटोमेटिकली 90 के हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये भी दोनों इक्वल होंगे सिमिलरली, और ऐसे ये और ये दोनों भी इक्वल होंगे सिमिलरली। या फिर आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट। तो इसकी वजह से भी आप इसको इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए एंगल DOA
एंगल DOA इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा BOC के। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। ओके, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और ऐसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल BOA इक्वल होगा एंगल COD के। ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये दोनों ही 90 के हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारे ही एंगल कितने के हो गए? 90 के। सो बाई इक्वेशन 3, 4 एंड 5, तो बाई इक्वेशन 3, 4 and 5 we say that हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल हैं, कौन कौन से? एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BOC इक्वल होगा एंगल COD इक्वल होगा एंगल DOA और इक्वल होगा 90 के। और यही चीज हमें इसके अंदर प्रूफ करनी थी। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस को प्रूफ करके दिखा सकते हैं बाय दिस मेथड। आप इसे थोड़ा सा सोचिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाइए और फिर क्वेश्चन को सिंपली सॉर्ट आउट कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। So that the bisector of an angles of a parallelogram form a rectangle. That's mean, पहले आप इसे फिगर से समझिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिगर आपको इसकी समझनी चाहिए। देखिए फिगर क्या कह रही है कि ये आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम हमने अपने पास से A, B, C और D आपको मेंशन करके दे दिया है। अब इसने कहा है कि जो भी यहाँ पर ट्राइंगल है इनका बाइसेक्ट करिए। तो देखिए इसका बाइसेक्ट करा, इसका बाइसेक्ट करा, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कहीं मिले। ऐसे ही इसका बाइसेक्ट करा D का, तो ये यहाँ पर आया, और ऐसे ही C का बाइसेक्ट करा तो यहाँ पर आया, ये एक दूसरे को कहीं मिले। और इस टाइप से जब बाइसेक्ट करके ये पॉइंट बनाया तो इसे P समझ लीजिए, इसे Q समझ लीजिए। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो इस टाइप से आपके पास जो ये अंदर की फिगर बनी है, कौन सी फिगर बनी है जिसको हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इस फिगर के बारे में। ये जो अंदर की ये वाली फिगर है, ये फिगर एक रेक्टेंगल होगी। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करके दिखाना है कि दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बेटर आपको एक चीज याद रखनी है कि देखिए जब मैं इसका बाइसेक्ट करूंगा ए का, तो ये जो होगा ये वाला एंगल, जब मैं ए को बाइसेक्ट करूंगा तो ये वाला एंगल जो होगा ये a/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं डी को बाइसेक्ट करूंगा तो ये वाला एंगल भी हमारे पास d/2 हो जाएगा। तो मैं इस सिचुएशन से यहाँ का जो ये s वाला एंगल है वो निकाल सकता हूं। तो इसी टाइप से हम ये क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, पर सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो गिवन हमारे पास है क्या कि हमारे पास गिवन है PQRS। गिवन इज लेट द PQRS, लेट PQR and S, PQR and S be the point of intersection, be the point of क्योंकि ये PQRS कहां पर है? इंटरसेक्शन पॉइंट है किसके? जो बाइसेक्ट लाइन गई है ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ किसके? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, of the bisector of angle A and angle B। पहले एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर से, सॉरी एंगल P जो है वो D और C के बाइसेक्टर से आया है, तो यहां पर D एंड C राइट करिए क्योंकि D और C के बाइसेक्टर से P आया है। D को बाइसेक्ट करा, C को तभी आया है। दूसरी चीज हमारे पास Q है,
Q यहाँ पर है, Q किसके बाइसेक्ट से आएगा, जब हम ये वाली चीज करेंगे, ये वाला दोनों लाएंगे तब आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर रेस्पेक्टिवली ये आगे बढ़ते चल जाएगा, एंगल C एंड एंगल D के बाइसेक्टर को एंगल B के बाइसेक्टर से हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा वाला जो R आएगा वो आपके पास हो जाएगा एंगल B एंड एंगल B एंड एंगल A के बाइसेक्टर से, एंड जो लास्ट वाला आएगा वो एंगल A एंड एंगल D के बाइसेक्टर से होगा रेस्पेक्टिवली, है ना। अगर इन सबका बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करे तब हमारे पास ये पॉइंट ड्राइव होंगे। अब ये पॉइंट तो हमारे पास ड्राइव हो गए हैं। इन पॉइंट्स के बाद में हमने इसमें क्या करना है, गिवन प्रूफ दिखाना है कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूव इज हियर कि जो ये हमारे पास अंदर का क्वाड्रिलेटर बना है PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। क्लियर। अब इसके बाद में हमारे पास सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे। तो इन ट्रायंगल ASD आप जानते हैं ASD में जो AR है वो बाइसेक्टर है A का, तो हमारे पास एंगल DAS की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ एंगल A, क्योंकि A जो है ये वाला जो अंदर का एंगल है ये A का पूरे का बाइसेक्टर है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ADS जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल D होगा। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो नाउ यू हैव कि एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D। अब यहां पर एंगल 1/2 दोनों जगह कॉमन है, क्योंकि हाफ हमने इसका भी करा है तो दोनों में हाफ तो कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एंगल A प्लस एंगल D। अब आप एक चीज जानते हैं कि ये जो एंगल A और एंगल D है ये एक ही लाइन पर इंटीरियर एंगल्स हैं, किसके, AD के लिए, है ना। तो देखिए अब हम इसे क्या लिखेंगे कि A एंड D आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो एंगल A एंड एंगल D आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ओके, तो सेम साइड पर ये इंटीरियर एंगल है, तो इसीलिए इन दोनों एंगल का एडिशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 180। आप पीछे पढ़कर आए हैं। तो एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180, और जब इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90। यहां तक आई थिंक भी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 90 कैसे आया। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 90 आई, अब हम सिंपली कहां पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल के अंदर। क्या कि आप जानते हैं कि होल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इक्वल टू 180। एंड यहां पर आप एक चीज जानते हैं कि जो सम ऑफ ऑल एंगल हैं, जो एंगल हैं इस ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ADS के अंदर जो एंगल है वो पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। तो वही राइट करेंगे। तो देखिए एंगल पहले राइट करेंगे DAS प्लस एंगल ASD और प्लस एंगल जो आपके पास बचा हुआ है ADS इज इक्वल टू 180। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि हमने ये वाली और इसके सम की वैल्यू अपने पास फाइंड कर ली है, यानी कि इसका और इसका सम, दोनों का सम हमारे पास 90 है। तो इन दोनों की जगह हम 90 राइट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस एंगल ASD इज इक्वल टू 180। अब ये 90 घटा देंगे तो एंगल ASD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, दैट्स मीन एंगल ASD इज इक्वल टू 90।
ये हमारे पास 90 का हुआ, यानी कि ये वाला एंगल जो आया हमारा, ये एंगल हमारे पास 90 का है। अब जब ये 90 का है तो आप एक चीज जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल ए एस डी, और वो भी क्यों, इज इक्वल टू 90 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसका मतलब अंदर का ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 का होगा, ये वाला एंगल भी हम 90 का लेकर आ गए। अब अगर हम इसी कंसेप्ट को कंटिन्यूअसली रखेंगे, इसी कंसेप्ट को कंटिन्यूअसली रखेंगे, तो सिमिलरली हम इसके चारों एंगल्स को 90 का बना सकते हैं। तो इसी लाइन को हम यहां पे राइट कर सकते हैं, सिमिलरली we say that एंगल कौन सा, पी एस आर इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90। तो यानी कि हमने एक चीज यहां पर डिफाइन करी कि ये सारे एंगल हमारे पास जो अंदर के हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे हमारे 90 के होंगे। अब चूंकि ये सारे एंगल 90 के हैं, पर अभी तक हमने इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं किया। जब ये पैरेललोग्राम होगा और पैरेललोग्राम में एक एंगल हमारा 90 का होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। पर अभी तक हमने सिर्फ ये प्रूफ किया है कि इसके सारे एंगल तो 90 के हैं, पर अभी तक हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम होना जरूरी है। अब देखिए, रेक्टेंगल के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके पास एक चीज है, अगर आप थ्योरम पढ़े हैं तो थ्योरम में है कि अगर अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये अपोजिट, ये वाला एंगल इस एंगल के अगर इक्वल होगा, इनके अपोजिट एंगल अगर इक्वल होंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम होता है, दैट इज अ थ्योरम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एंगल पी एस आर है वो ये लिखा, और एंगल पी क्यू आर आपके पास ये रहा, या आर पी क्यू, तो ये रहा, ये दोनों एंगल हमने यहां पर इक्वल राइट कर लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये अपोजिट एंगल ही तो हैं उसके सेम के, तो जब ये अपोजिट एंगल हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है। तो यहां पर इसी चीज को लिखेंगे, नाउ वी फाउंड दैट एंगल PSR is equal to एंगल RQP, ये इसके अपोजिट एंगल हो गए, that is your opposite angle. Good morning student and welcome on my mathematics class, that is of class 9th. Today I will explain the class 9th syllabus, trigonometry or triangles and quadrilateral. तो नाउ वी हैव टू से कि ये एक पैरेललोग्राम भी है और इसके एक एंगल हमारे पास 90 भी है, तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 डाल देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट, हम कह सकते हैं क्या कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ parallelogram and also one angle in 90, then it is a rectangle. So PQRS is a rectangle. तो ये PQRS एक रेक्टेंगल होगा। इस टाइप से आप अपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके थ्रू आपके ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन अच्छा है, एक बार जरूर आप ट्राई करिए घर पे, क्योंकि यहाँ पर आपको इजी लगेगा, बट आपको जब ये करना होगा तब आप इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मानेंगे। तो एक बार जरूर करके देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये।